Okay, today we are going to discuss sterilization of glassware and media. Sterilization of glassware and media. Here, the glassware and media. These are the two things which are required for the growth of microorganisms in research or in study. We have during the growth of particular bacteria or particular virus, the glasswares and the media are necessary. Here, the sterilization of glassware and media is necessary because if the sterilization is properly not done, the unnecessary, unwanted microorganisms can grow. We cannot take the culture in pure form. So the glassware sterilization is very necessary. So first we will see what is the sterilization. You see here, the sterilization actually it means the complete destruction or removal of living organisms from the object being sterilized. From the object being sterilized. So here, see here, what is the definition of sterilization? Sterilization is complete destruction or removal of living organism from the object being sterilized. Okay, so the object which is being sterilized should be free from living organisms. If the object is having living organisms, so unnecessary, unwanted fungal members, unwanted fungal bacterial members can grow on that glassware or on that media. So sterilization is necessary. So here you remember that sterilization actually it is a removal of living organism or it is a complete destruction. Here the word complete is used because if the destruction is incomplete, that is not sterilized. So here it is a very important thing. There is a complete destruction or पर remove. आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी. देखो आवाज नहीं है. The complete destruction or removal of living organisms from the object being sterilized. That is known as sterilization. तो अब याद रखो स्टेलाइजेशन किसको बोल रहे हैं. अगर कोई चीज आप स्टेलाइज कर रहे हैं वेदर इट मे बी ग्लासवेयर. ग्लासवेयर बोले तो जैसा प्रैक्टिकल यूज करते हैं स्लाइड है कवर स्लिप है पेट्री फिलेट है फिर इसके बाद टेस्ट ट्यूब है व्हीकल्स है दैट इज द ग्लासवेयर एंड मीडिया. Actually, media that is used for growth of the fungi or as well as bacteria. In laboratory, you can grow the fungi and bacteria, but you cannot grow the viruses. Here, we remember that virus only grow in the living organisms. Virus सर grow. आवाज नहीं आ रही आपकी. Virus grows in the living organisms. How are you? Hello. How are you? कैसे होया? नो सर How are you? क्लियर नहीं आ रही है. ऐसा क्या ठीक है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है. एक मिनट देखते कनेक्शन देखते हैं चलो. ठीक है आवाज मेरे को आवाज ही हाँ आवाज क्या. हेलो. हेलो आवाज नहीं सोया. हेलो. 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 So here the sterilization is complete killing or destruction or removal of living organisms from the object being sliced. From the object being sliced.
So here the word complete is used. It means that the installation should be complete. Installation should be complete. Means there is no part of the organisms which is present on the object which is doing to sterilize. Okay. Next thing, what are the different methods which are used in the sterilization? Now these days we are facing a problem that is about the coronavirus. Here, in this case, every person they are using sanitizer. They are using sanitizer. Actually, the sanitizer is very important for killing the microorganisms or destruction of the microorganisms. Okay, so it is also one type of sterilization. It is one type of sterilization. The object should be sterilized with the help of sanitizer. Now in market there are different sanitizers are available. In the same manner, Dettol, particularly when the infection or when the injury occurred, the doctor suggests to wash the injury with the Dettol. So this is one type of sterilization. But here, in case of scientific research, the sterilization should be complete. If there is a one is force, if it is remain, it actually destroy the entire culture. Entire culture. For example, if you want to grow the penicillium fungus in medical sciences, the penicillium fungus is very important. From that, penicillin injection is obtained. So, for getting the penicillin in pure form, it is necessary to sterilize the glassware and media. So, we can, as I have told you, the fungi and the bacteria can grow on the media, but the viruses cannot grow because the viruses only grow and reproduces in the living organisms. We cannot grow the viruses on artificial media. Artificial media. So याद रखो here media means actually the growth medium on which the bacteria and the fungi grow. Okay, so for example, another example that is in case of house or home, if you keep the bread for few days, then definitely after few days the mycelial growth is seen on the bread or sometimes on jelly or sometimes on the food articles. The fungus growth is seen, and on which the fungus growth takes place, that is the media. So here there are different methods. Okay, see here one by one I will show you what are the different methods. First, why heat? Why heat? Okay, with the help of heat, we can sterilize the objects or media or glassware. Here, particularly glassware and media. Okay, these are the two objects which are being sterilized. So, with the application of heat, we can kill or destroy the living organisms, whether it be bacteria, viruses, or fungi, completely. The first method, that is the wet heat. The wet heat, particularly in this case, the glassware and the media, they are wrapped in a paper and they are kept in autoclave. They are kept in autoclave. Here in autoclave, actually the autoclave looks like a cooker. It looks like a cooker. Here there is a pressure and heat that kills the microorganisms or that destroy the microorganisms. So here on 120 degrees centigrade for
20 or 15 LV pressure, they can kill completely the living organisms in autoclave. Okay, we will see how is the autoclave in next lecture. Actually, autoclave it works as a same manner. Works as a cooker, which is used in home. That is the cooker. Next thing here, you remember that in case of wet heat, there is a water in that autoclave. Next thing, that is a tendilization. What is tendilization? Actually, again, it is a one type of installation of glassware and media with the help of heat. In this case, the objects, whether it may be glassware or whether it may be media or whether it may be anything that is kept at 100 degrees centigrade for 30 minutes daily. That is the tendilization. In case of tendilization, the glassware and media, they are kept at 100 degrees centigrade for 30 minutes. That is daily. That is the tendilization. Next thing, that is the dry heats. Okay, for example, in case of dry heats, if the oven is used, here I think all of you are know what is mean by oven. Oven किसको बोलते हैं आपको मालूम होगा. Now these days it become very useful in home appliances. Oven. Here, in case of oven, the objects, whether it may be glassware or media, they are kept for 160 degrees centigrade for 2 hours. After that, it becomes completely free from the living organisms. It becomes free from the living organisms. If suppose the second method, that is, if suppose the viewing object is gas or liquid, how we can sterilize these? With the help of cotton or filter papers or filtrate. So, in case of gas, we can destruct the or kill the microorganisms with the cotton. You can pass the gas through this cotton and only the gas is passed and the microorganisms remain on the cotton. In case of liquid, we can use the filter. We can use the filter. As per the size of the bacteria, viruses, fungal spores or mycelium, we can use the filter. Okay, next method, why the radiation? Now, these days, it become very common. That is the removal of or destruction of microorganisms with the radiation. Okay, in case of radiation, the radiation is fast on the object. Okay, these rays may be ultraviolet rays, gamma rays, and X-rays. Well, particularly in case of different diseases, this radiation technique is used. Next thing, last method, that is the chemical sterilization. In case of chemical sterilization, the object, whether it may be any instrument, glassware, or media, that is sterilized by chemicals. These chemicals are hypochlorite solution, phenolic derivatives, and ethylene oxides. These are the chemicals which are used to kill the microorganisms from the glassware and media or from the object. So this is in brief about the sterilization of glassware and media. If you have any doubt, you can ask the questions. अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. आवाज आ रही है ना सबको? अलीना, आवाज आ रही ना? आयशा? Yes, sir. जैसीन, जोया, ठीक है. तो अब देखो, याद रखो, इंस्टॉलेशन एक्चुअली इंस्टॉलेशन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं बहुत काम आता है. जो लोग समझो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, हाँ, तो अब एक्चुअली क्या करते हैं मालूम है क्या? इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इन थर्ड ईयर आपको एक फंगस ग्रोथ करना है, एक बैक्टीरिया ग्रोथ करना है. जो लोग माइक्रो के स्टूडेंट हैं उनको भी मालूम है. तो फॉर
एक पर्टिकुलर फंगस ग्रोथ करना है तो इसलिए आपको ग्लासवेयर और मीडिया को स्टलाइज करना जरूरी है। अगर समझो स्टलाइज करेंगे अपन ग्रोथ नहीं कर सकते, क्यों? अगर ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया दूसरे फंगस जो हवा में पानी में, हाँ, तो क्या होंगे, उसका ग्रोथ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो पर्टिकुलर अगर समझो आप लोग एक ही अगर फंगस ग्रोथ करने का है, अस्परजिलस ग्रोथ करने का है, कोई अगर समझो दूसरा ग्रोथ करने का है, कीटोमियम ग्रोथ करने का है, या पेनिसिलिन, सर आवाज नहीं आ रही आपकी बराबर। हाँ पेनिसिलिन ग्रोथ करने का, अगर कोई फंगस अगर पर्टिकुलर फंगस ग्रोथ करना है तो उसलिए क्या हम लोग क्या करेंगे, और ये ग्लासवेयर और मीडिया को स्टलाइज करना जरूरी है। अब स्टलाइजेशन बोले तो किसको बोलेंगे, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और रिमूवल और किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अब आजकल आजकल क्या हो रहा है मालूम है क्या, ये जो वायरल डिसीजेज स्प्रेड हो रहा है, देखो कोरोना डिसीज हो रहा है, कोविड हो रहा है, बोले ना कोरोना से, वायरस से। अब क्या करें, जनरली लोग क्या करें, हाथ साफ करें सैनिटाइजर से, तो दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन। वो क्या है, एक टाइप का स्टरलाइजेशन है। अगर कोई चीज है, समझो पेन है या कोई चीज है, फोन है, उसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते, वैसे करते हैं सैनिटाइजेशन। एक्चुअली दैट इज द केमिकल स्टरलाइजेशन। इन द सेम मैनर रेडिएशन, filtration and by heat installation is very common। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें क्वेश्चन आप। है ये कुछ पूछना, तो आप याद रखो, अगर समझो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आ गया, व्हाट इज इंस्टॉलेशन पूछेंगे आपको, हाँ, तो इसमें क्या है, खाली याद रखने का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन तो उसका पूरा खात्मा करना, या समझो उसको निकाल देना, या उसको किल करना। हाँ, डिस्ट्रक्शन बोले तो यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। अगर इनकम्प्लीट रहा तो दैट इज नॉट स्टरलाइज, बराबर है, दैट इज नॉट स्टरलाइज। सो स्टरलाइजेशन करने के वास्ते हम 4 मेथड यूज करते हैं। अब बता दिया कौन से मेथड हैं, और देखो फिर एक बार देख लो। ये हीट का है, दूसरा क्या है, टेंडिलाइजेशन है, सॉरी पहला हीट है, दूसरा फिल्ट्रेशन है, तीसरा रेडिएशन है, चौथा केमिकल स्टरलाइजेशन है। तो हीट में 3 है, वेट हीट, इसमें ऑटोक्लेव यूज होता है। टेंडिलाइजेशन में समझो जो भी अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं, यूज कर सकते हैं, कोई पार्ट में गर्म कर सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं। और तीसरा ड्राई हीट है, इसके वास्ते ओवन यूज कर सकते हैं। अभी आपके आपके प्रैक्टिकल में है ये ओवन और ऑटोक्लेव। ओवन तो आपको मालूम है, ओवन किसको बोलते हैं, जो घरों में यूज करते हैं ना ओवन, यस हाँ वही ओवन है। यस सर। हाँ, ओवन मालूम है आपको, ऑटोक्लेव मालूम नहीं है। अपने लैब में रखा हुआ ऑटोक्लेव लिखा हुआ है उसमें। हाँ, इट लुक्स लाइक ए कुकर। घर में कुकर रहता है ना अपना, यस सर। हाँ, कुकर में और भगोने में पकाने में क्या फर्क रहता है? कुकर में प्रेशर बनता है सर, हाँ, भगोने में नहीं बनता। हाँ, तो नहीं फ्रेशर, बनता। हाँ ठीक है, तो फ्रेशर बनते हैं और उसमें हीट भी होता है, तो जल्दी क्या होता है, स्टरलाइज होता है। अपने पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है ऑटोक्लेव बोल के। आप देखेंगे लैब में पीछे रखा हुआ है, लैब में देखो आगे ऑटोक्लेव। एक ओवन रखा वाला अलमारी के जैसा, छोटी अलमारी रहती ना, तिजोरी की जैसा, लैब में रखा हुआ है, देखो। यस हाँ, मैंने आपको प्रैक्टिकल के नोट्स दिया हुआ, उसमें ऑटोक्लेव की डायग्राम है और उसकी भी डायग्राम है, ओवन की भी। है सर। हाँ, तो ये यस सर। प्रैक्टिकल में आपको आता है शॉर्ट नोट्स में। हाँ, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। हाँ, ये दिया ऑटोक्लेव है क्या, ओवन है, ये क्या है, ये बताते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो, हीट स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन एंड केमिकल। अब देखो जैसा कहते हैं जनरली क्या होता है मानो कि अगर समझो कोई लिक्विड है, उसको अगर समझो अपने को स्लाइस करने का है, या गैस है उसको स्लाइस करने का है, तो क्या करेंगे, उसमें 2 चीज यूज करेंगे। एक क्या यूज करेंगे, कॉटन, कॉटन बोलते कपास, और दूसरा फिल्टर। हाँ, ये फिल्टर पेपर है समझो, ये कोई फिल्टर है समझो, 2 चीज यूज करेंगे। अगर गैस है तो कैसे फिल्टर करेंगे, कॉटन से। अगर लिक्विड है तो फिल्टर पेपर से या फिल्टर क्लॉथ से समझो। रेडिएशन का मालूम है आपको, रेडिएशन सुने वाले क्या आपने, रेडिएशन किसको बोलते हैं, रेडिएशन सुने वाले क्या आपने, एक्चुअली इट इज ए टेक्निक। शुआई रेडिएशन हाँ मतलब सर बराबर, हाँ शुआई बराबर है। ना। हाँ, उससे क्या करते हैं मानो कि वो शुआओं से पर्टिकुलर जहाँ पे समझो इन्फेक्शन है, या जहाँ पे समझो ऑर्गेनिज्म है, उसको किल करते हैं। ठीक है, दैट इज द रेडिएशन। और कौन से रेडिएशन यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज अल्ट्रावायलेट, एंड एक्स रेज, एक्सरेज। ये चीज। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज का फिर एग्जाम्पल अपने लैब में है, देखो इनोकुलेटिंग चेंबर रखा वाला अपने अपने लैब में, देखेगा आपने इनोकुलेटिंग चेंबर,
वो नोट्स में है आपका डायग्राम, यस सर। देखा है क्या आपने? इनोकुलेटिंग चेम्बर, देखो यहाँ लिख रहा है इनोकुलेटिंग चेम्बर, इनोकुलेटिंग लिखता हूँ ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, आपको इजी हो जाएगा स्टडी करने में। इनोकुलेटिंग चेम्बर, अब इनोकुलेटिंग चेम्बर तो कहाँ रखे वाला है? देखो अपन लैब में बैठते हैं ना, राइट हैंड साइड एक ऐसा बॉक्स रखा वाला, उसमें लाइट लगी हुई है, देखिए आपने वो इनोकुलेटिंग चेम्बर, उसमें एक लाइट लगे वाली है, दैट लाइट इज एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज लाइट। वो लाइट कैसी, हरी कलर की लाइट है, नीली कलर की, अगर वो चालू करते एकदम नीला हो जाता है। और जैसे जनरली इन केस ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में देखिए, आप सुने में ऑपरेशन थिएटर में लाइट्स लगाए हुए रहते, अल्ट्रावायलेट रेज रहते उसमें, वो क्या करते, ऑपरेशन होने के बाद उसमें जब कोई भी नहीं रहेंगे रूम में, ये करते अल्ट्रावायलेट रेज क्या करते, कुछ और चालू कर देते, जिससे क्या होता है पूरे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं माइक्रो वो किल हो जाते। दैट इज द स्टरलाइज। अगर आपको रूम स्टरलाइज करना है, अभी फिलहाल कर रहे थे ना स्टरलाइजेशन, कर रहे थे सैनिटाइजेशन, जब क्लास की सैनिटाइजेशन करो, ऑफिस की सैनिटाइजेशन करो, सैनिटाइजेशन करो, दैट इज एक्चुअली द स्टरलाइजेशन। ठीक है, डाउट है क्या देखो इसमें आप? हाँ, अब इसमें उसके बाद अपने पास दूसरा देखने का कल्चर मीडिया फॉर आइसोलेशन ऑफ फंजाई। अभी देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, जैसे आप फंजाई को कैसा ग्रोथ करने का है, ये अपन कल्चर मीडिया कैसे तैयार करते, पीडीए उनके है, पोटैटो डिस्ट्रेस आकार ऐसा बनाते, पर्टिकुलर पॉपुलर मीडिया दैट इज पीडीए। एक्चुअली आपको अगर प्रैक्टिकल रहता था, प्रैक्टिकल है आपको, अगर एक फंगस है कैसा ग्रोथ करने का, उसको प्रैक्टिकल है, पहले आपको मीडिया बनाना पड़ेगा। हाँ, मीडिया क्या रहेगा, पीडीए रहेगा, पीडीए बोलते पोटैटो डिस्ट्रेस आकार, उसको क्या करते हैं फिर इसको तैयार करके उससे फंगस छोड़ने का, हवा में से लेने का, पानी में से लेने का, सॉइल में से लेने का, उसमें देखने का कौन से फंगस है। हाँ, दैट इज उसको बोलेंगे कल्चर, कल्चर करने का। वैसे कई भी कल्चर करेंगे, कल्चरल मीडिया से कल्चर करेंगे, ये कल्चर मीडिया से कल्चर करेंगे। उसमें से क्या करते हैं फिर कल्चर करने के बाद एक पर्टिकुलर जो फंगस है, समझो अस्परजिलस है, इसको अगर अपनी प्योर फॉर्म में कैसा लेने का, हाँ, तो उसको स्लाइस करके उतना अस्परजिलस लेके उसको ट्रांसफर करते हैं मीडिया पे, प्योर मीडिया जो स्लाइस किया हुआ है। तो इन द फॉर्म इन दिस प्रोसीजर वी कैन isolate the particular fungus in a pure form। सिर्फ आपको अस्परजिलस ग्रोथ करना है तो अस्परजिलस आप ले सकते हैं। सो दिस टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल इन रिसर्च, पर्टिकुलरली इन रिसर्च दिस टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल। तो याद रखो स्टरलाइजेशन किसको बोलते हैं? स्टरलाइजेशन बोलते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट खात्मा करना, उसको जान से मार देना या खत्म कर देना या डिस्ट्रक्शन कर देना। तो चार मेथड बताए हुए, हीट का है, फिल्ट्रेशन का है, रेडिएशन का है, और चौथा केमिकल्स का है। अभी केमिकल्स अगर समझिए कौन से हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन केमिस्ट्री के सरह को वाला होगा, फिनालिक डेरिवेटिव्स एंड इथिलीन ऑक्साइड, दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड इन द स्टरलाइजेशन। अगर सरह केमिस्ट्री के अगर कोई सर है तो पूछे तो बोल देंगे। एक्सरे ये जो फिजिक्स का पार्ट है, ये रेस का जो फिजिक्स का पार्ट है, अल्ट्रावायलेट रेस, गामा रेस एंड एक्स रेस। ठीक है, स्टॉप Yes, करेंगे। sir. हाँ, स्टॉप करेंगे यहाँ पे। Yes, sir. देखो अभी किसको पूछना है तो पूछ सकते आप, नहीं प्रॉब्लम नहीं कुछ। Yes, sir. हाँ, नो ना, ठीक है, हाँ चलो, अल्लाह हाफिज़। हाँ, स्टॉप कर देंगे।